Assalamu alaikum students. Today we are going to start a new topic in second chapter, that is accounting equation. What is accounting equation? As you know, the transaction is done, so it affects in, according to modern approach, it affects in assets, liability as well as capital, or we can say revenue or income. Revenue or income comes in a capital, revenue or expenditure comes in a capital. So whatever will be the income and whatever will be the expenses, that will be adjusted in the capital. So there is a equation for finding the transactions effect. So asset is equals to liabilities plus owner's equity. Owner's equity means a stock share capital, or we can say the capital. See, assets things of the value, or liabilities means amount to owe to the third parties, and stakeholders means asset owned by the shareholder or the owner of the company. Okay. Question number 1, what we have to do, we have to prepare a equation for the transaction. For this transaction, we have to prepare equation. Equation number 1 is Rupali commenced business with a bank balance rupees 25,000. Rupali commenced business with a bank balance rupees 25,000. As you know that when business started, what comes in? Cash comes in. What comes in? Cash comes in. Am I audible to you, Nadia? Am I audible? Am I audible, dear? Okay, chalo. Rupali commenced business with a bank balance rupees 25,000. When business started with cash, what comes in a business? So cash comes in, and the person who gives the capital, that amount is called capital amount. Okay. So in the transaction, we will write Rupali commenced business with bank balance ठीक है. So when business commence, so what comes in? Cash comes in, or cash comes under asset. So how much cash comes in? 25,000 cash comes in. So this 25,000, any liability increases? कोई liability increase हुई? No. The amount is called capital amount. So we will write here, in this capital amount, how much capital increases? 25,000. ठीक है. Now what we have to do, we have to total this. So cash is, asset is 25,000, and this liability plus capital, जो liability plus capital है आप लोग का, that is दोनों को प्लस करके हम लिखते हैं. So total amount is 25,000. ठीक है. Anybody having doubt in this? This transaction is very easy. We are doing this transaction in each question. Okay. Now second transaction, purchase machinery for cash rupees 5,000. Purchase machinery for cash rupees 5,000. That is machinery comes in. Okay. Machinery comes in. So tell me, machinery is an machinery जो है वो हमारी क्या है? Machinery is an very good, Simran, very good, asset. ठीक है. For purchasing that asset, what we are paying? To purchase that asset, what we are paying? Cash. Very good. Cash. Again cash comes in which category? Cash जो है वो हमारे कौन सी कैटेगरी में आता है? कैश जो है हमारी कौन सी कैटेगरी में आता है? According to modern approach, cash comes in which category? Everybody. Only Simran and Sanya is giving answer. Others? Cash and again comes in a asset. Very good. Asset में आता है. ठीक है. So we will put down the balances of this. First we will put the balance. In asset we have balance 25,000. In liability we have zero balance. ठीक है. In liability we have zero balance. In capital we have 25,000.
वी हैव 25,000. वी हैव पुट द बैलेंसेस जो हमारे पास पिछले बार थे. असेट हमारे पास 25,000 है और कैपिटल हमारे पास 25,000. नाउ वी आर परचेजिंग द असेट ऑफ रुपीज मशीनरी ऑफ रुपीज 5,000. हम लोगों ने क्या किया, मशीनरी परचेज किया. क्या किया, मशीनरी परचेज किया. तो हमारे पास कैश आया, मशीनरी आई कितने की, 5,000 की मशीनरी आई. और उस मशीनरी को परचेज करने के लिए हमने हमारे पास से क्या किया, कैश गया हमारे पास से. सो अगेन द इफेक्ट कम्स इन asset sign because one asset came and for that asset we are giving some asset to the other person. So cash goes out, machinery comes in. Both the effect will be in asset column. There will be no effect in liability, no effect in capital. कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, कैपिटल में भी नहीं हुआ है, लाइबिलिटी में भी नहीं हुआ है. तो बैलेंस वी विल कैलकुलेट बैलेंस. So see, in asset side we have balance 25,000. In asset side we have balance 25,000. Liability we have zero balance. ठीक है. और in capital how much balance we have, see in capital how much balance we have, 25,000 balance we have. How much balance we have, 25,000. So when we equalize this asset with left hand side with right hand side, when we equalize this left hand side to right hand side, to left hand side in asset column we have 25,000. ठीक है. This 25,000 is equals to this liability plus capital. So we get the amount 25,000. We get the amount 25,000. So here we'll put equal sign. ठीक है. So this left hand side is equals to right hand side, 25,000 25,000. Understood second transaction here. Second transaction clear है सभी को, second transaction clear है. फिर से रिपीट करती हूँ. ठीक है, चलो. क्या लिखा है, परचेज मशीनरी फॉर कैश. मतलब हमने क्या किया, कैश मशीनरी मशीनरी परचेज की कैश में, मशीनरी परचेज की हम लोगों ने कैश में. अच्छा, उस मशीनरी को परचेज करने के लिए हमने क्या किया, असेट पे किया, अपना कैश पे किया 5,000. कैश में हो रहा है ट्रांजेक्शन. आप लोग ने मशीनरी परचेज किया तो आपके पास क्या आएगी, मशीनरी आएगी, बराबर. और मशीनरी आपका क्या है, असेट है. क्या है, मशीनरी आपका असेट है. असेट आ रहा है, लेकिन जब वो असेट आ रहा है तो कुछ जा भी तो रहा है अपने पास से, बराबर कि नहीं. जब मशीनरी आ रही है तो मशीनरी कम्स इन एंड कैश गोज आउट. व्हेन मशीनरी कम्स इन, कैश गोज आउट. बोथ द इफेक्ट इन कैश असेट कॉलम. दोनों भी इफेक्ट किस में हो रहे हैं, असेट में. एक 5,000 की मशीनरी आई तो उस 5,000 की मशीनरी के लिए हमने 5,000 क्या किया, पे भी किया. तो दोनों भी इफेक्ट हमारे कहाँ पर हो रहे हैं, असेट में हो रहे हैं. कोई लाइबिलिटी नहीं बढ़ रही है, ना कोई कैपिटल घट रहा है, ना बढ़ रहा है. ठीक है. तो दोनों इफेक्ट कहाँ पर हो रहे हैं, हमारे असेट में हो रहे हैं. तो हमारे पास असेट का बैलेंस क्या हो गया, 5,000 आया तो 5,000 गया. सो देर इज नो इफेक्ट इन द दिस. 25,000 में 5 मिला तो कितना हो गया, 30. 30 में से 5 माइनस किया तो कितना बचा अपने पास, 25,000 ही बचा. कैपिटल लाइबिलिटी में कुछ अमाउंट है क्या, नहीं, जीरो है. कैपिटल कितना बैलेंस था हमारे पास, 25,000. तो जब असेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल किया हम लोगों ने, कैपिटल किया तो कितना हो गया, 25,000. 25,000 and this left hand side is equals to right hand side. When asset is equals to liabilities plus capital तो कितना हो गया, 25,000 25,000. Understood Tahura? Transaction brought goods from Swara worth rupees 3,000 on credit. कितने का, 3,000 का क्रेडिट में गुड्स आ रहा है. तो पहले हम लोग को बैलेंसेस डाउनलोड, पहले बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करना है. जब हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो कितना बैलेंस है हमारे पास, यहाँ पे 25,000 कैश में. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25,000. कितना लिखेंगे, 25,000. लाइबिलिटी में कोई बैलेंस है क्या बेटा, लाइबिलिटी में कोई बैलेंस है नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, जीरो. क्या लिखेंगे, जीरो. ठीक है. कैपिटल में कितना बैलेंस है हमारे पास, 25,000 बैलेंस है. तो हमने पहले बैलेंसेस ब्रॉट डाउन किया. ब्रॉड गुड्स फ्रॉम स्वारा वर्थ रुपीज 3,000. कितने का गुड्स परचेज किया हमने, 3,000 का. गुड्स आया, गुड्स आया मतलब हमारे पास क्या आया, असेट आया. कितने का असेट आया, 3,000 का असेट आया. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हमारे पास असेट बढ़ गई. ठीक है. तो हम लोगों ने यहाँ पे कितना बढ़ी हमारी असेट, 3,000 रुपीज बढ़ गए. अच्छा, अब हम लोगों ने जो परचेस किया है, क्या हम लोगों ने कैश दिया है क्या, नहीं. कैश में ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हुआ है. मतलब ये स्वारा जो है, स्वारा, वो स्वारा क्या बन रही है हमारी, क्रेडिटर बन रही है. क्या बन रही है, क्रेडिटर.
मतलब हम लोग उसको क्या करेंगे, थोड़े दिन के बाद अमाउंट पे करने वाले हैं। बिजनेस क्या करने वाला है, थोड़े दिन के बाद उसको अमाउंट पे करने वाला था, वो क्या बन गई, हमारी क्रेडिटर बन गई। तो सुवारा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर क्या होता है, बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। क्या होती है, बिजनेस की लाइबिलिटी। तो हम लाइबिलिटी में लिखेंगे, लाइबिलिटी बढ़ गई, कितने की लाइबिलिटी बढ़ी, 3,000 की। कितने की लाइबिलिटी बढ़ी, 3,000 की। अब यहाँ पे नहीं तो कैपिटल में क्या लिखेंगे हम लोग, जीरो। क्या लिखेंगे, जीरो। ये ट्रांजैक्शन में किसी को कोई डाउट है, हमने गुड्स परचेज किया तो हमारे पास स्टॉक आया, हमारे पास गुड्स आया, तो वो गुड्स, वो स्टॉक हमारा क्या है, असेट है। तो हमने असेट में बढ़ा दिया 3,000 रुपए, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने अभी तक कैश नहीं पे किया, कैश पे नहीं कर रहे हम लोग, क्रेडिट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। किस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्रेडिट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। जब हम क्रेडिट में ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमारा कैश क्या, हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लाइबिलिटी कितनी बढ़ी, 3,000 रुपए। कोई इफेक्ट कैपिटल में हुआ क्या, नहीं। तो कैपिटल में हमने क्या लिखा, जीरो। अब हम लोग टोटल करते हैं, 25 प्लस 3 कितना हो जाता है, 28। कितना हो जाता है, 28। दिस 28 इज इक्वल्स टू दिस, लाइबिलिटी में कितना बैलेंस आया, अभी हमारे पास 3,000 बैलेंस आया, ठीक है। लाइबिलिटी में कितना बैलेंस आ गया, 3,000। अब हम लोग यहाँ पे कैपिटल में लिखते हैं 25,000। अब हम दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्लस करके देखते हैं। असेट में तो 28,000 है ही, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैपिटल में कितना आता है बैलेंसेस। सो दिस वी विल ऐड दिस, 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 3 कितना होगा बेटा, 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 28,000। सो हियर वी इक्वलाइज दिस, 28,000 is equals to liability plus capital 28,000। अंडरस्टूड एवरीवन, कैसे इक्वेशन बनाना है, अंडरस्टूड एवरीवन, शैल आई रिपीट अगेन, समझा। अब देखो यहाँ पे पेड सैलरी, सैलरी पे करे, आपके पास असेट कितना है, असेट कितना है आपके पास, चलो यहाँ पे देखो असेट कितना है अभी आपके पास, बताओ मुझे। असेट आपके पास अभी फिलहाल अवेलेबल कितना है, जिसपे मैंने देखो कर्सर रखा है, कितना बैलेंस टोटल है। सभी का रिप्लाई चाहिए मुझे। सानिया ही अकेले रिप्लाई दे रही है, सिमरन गुड, 28,000। आगे अब्दुल्ला, उस्मान, शाहिद, साहिल, वेरी गुड, 28। आगे 28, हाँ। ये हमारे पास असेट का बैलेंस कितना है, 28,000 है। कितना है, 28,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 28,000। लाइबिलिटी का बैलेंस कितना है आपके पास, लाइबिलिटी का बैलेंस, लाइबिलिटी का बैलेंस कितना है, देखो मैंने जहाँ पे ये प्लस का साइन रखा है ना, कितना है लाइबिलिटी का बैलेंस, 3,000। वेरी गुड। So 3,000 we will write here. Okay. Now कैपिटल का बैलेंस कितना है आपके पास, कैपिटल का बैलेंस कितना है, कैपिटल का बैलेंस कितना है, 25,000। तो हम लोग ने यहाँ पे लिखा 25,000, ठीक है। ये समझा बेटा आपको, पहले हम लोग को बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करना है। क्या करना है, बैलेंसेस ब्रॉट डाउन। अब सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी पे करेंगे तो क्या जाएगा आपके पास से, सैलरी पे कर रहे हैं तो क्या जाएगा आपके पास से, बोलो, कैश, ठीक है, कैश गया। तो हम लोग यहाँ पे असेट में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कैश गोज आउट। असेट में क्या करेंगे हम लोग, माइनस, कितना कैश पे करेंगे हम, 3,000। कितना पे करेंगे, 3,000, ठीक है। यहाँ पे इक्वल की साइन आ जाएगी, यहाँ पे इक्वल की साइन आ गई। और लाइबिलिटी बढ़ी क्या, नहीं। तो लाइबिलिटी में जीरो आ गया, लाइबिलिटी में जीरो आ गया अपना। कैपिटल कम हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है, कैपिटल कम हो रहा है। तो कैपिटल कितना कम हो रहा है हमारे पास से, 3,000, क्योंकि हम एक्सपेंसेस पे करते हैं। एक्सपेंसेस पे करेंगे तो हमारा कैपिटल बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैपिटल बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर असेट 25 में से 3, 28 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 25,000। फिर यहाँ पे हम इक्वल की साइन डालेंगे, इक्वल की साइन। लाइबिलिटी में तो हमारे पास कितना बैलेंस है, सिर्फ 3,000 बैलेंस है, तो हमने 3,000 लिख दिया। फिर हम यहाँ पे प्लस की साइन एज इट इज डालेंगे, दिस 25,000 माइनस 3,000, what is remaining, 22,000 is remaining, ठीक है। So when we add this, in asset side we have 25,000, in liability plus capital, liability plus capital, how much we will get, 25,000. How much we will get, 25,000. So here we complete our transaction number 4.
आई होप यू अंडरस्टूड। सभी को समझा? ये सभी को समझा?